Hello students, let's talk about intratesticular duct system that is comprises of seminiferous tubule. each each in जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया that tunica albuginea that form a compartment and that is also known as the testicular compartment, and in each compartment 2 to 3 seminiferous tubules are present, which layer is formed of germinal epithelial tissue, and here only spermatogenesis processes occur. So this seminiferous tubule is most important part as the intratesticular duct. The second one is the tubuli recti, third one is strati testis, fourth one is vas efferentia. As you know, this vas efferentia that is pass as a vas deferens into the epididymis. So epididymis is also a highly coiled structure where actually the sperm mature and it get its functional form over there. Chalo, let us look about the epididymis. As I told you, it is a highly coiled structure made up of 6 meter long, and itself it is divided into 3 parts. द टेस्टिकुलर पार्ट के जिसके ऊपर जहाँ से शुरुआत होती है एपिडिडाइमिस की, सो दैट एपेक्स पोर्शन ऑफ द टेस्टिस वेयर द एपिडिडाइमिस इज स्टार्ट, इट इज़ नॉन एज द कैप्यूट एपिडिडाइमिस. The lateral part, which is directly attached to the testicular lateral side, that is known as the body or corpus epididymis, and the lower part or the bottom part opposite to the apex of the epididymis, caput epididymis, that is known as the chorda epididymis. So sperm which is stored in epididymis, so here functional activity of sperm is gained, so we can say maturation of a sperm occur in this epididymis, and that's why it is a highly coiled structure. Okay, let us see about the epididymis. Actually it is made up of pseudo stratified epithelial tissues, means it look like that is it is arranged in a many strata or into a layer, but it is not actually one. So the wall of epididymis is made up of pseudo stratified epithelial tissue. Okay, let us look about the vas deferens. एज यू नो, कोडा एपिडिडाइमिस में से जो नेरो ट्यूब पास होने वाली है, दैट कोडा एपिडिडाइमिस दैट इज़ ओपन इनटू द वास डेफरेंस, मीन्स वास डेफरेंस है वो टेस्टिस में से स्पर्म को पास करके लेके जाने वाली ट्यूब है, which ascend upward through the spermatic cord and it is enter into the abdominal cavity. So the vas deferens, which is directly attached to the chorda epididymis, because it leave that part and now it is ready to enter into the abdominal area. चलो, ये जो वास्ट डेफरेंस है वो एब्डोमिनल एरिया से जब पास होके पेनिस तक जाएगी तो अलग अलग ग्लैंड इसमें ओपन होंगी, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ईट उसका जो डायामीटर है ट्यूब का वो वेरिएटेड होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसके नाम रखे गए हैं. चलो, व्हेन दिस एपिडिडाइमिस है that is pass from the spermatic cord and when it is enter into the abdominal cavity, तो यहाँ पे it make a loop over the correspond uterus, मतलब यूटरस के पास एक वो लूप फॉर्मेशन करेगा, एंड डिस्टल पास पार्ट जो वास डेफरेंस का है इट्स सम वो डायलेट, थोड़ा डायलेट होके एक स्वॉलन पोर्शन फॉर्म करेगा, एंड दैट इज़ नॉन एज द एम्प्यूला पार्ट. राइट, जैसे हम लोगों ने आगे की फिगर में देखा था कि एम्प्यूला फॉर्म है वो कैसे होता है. राइट, देन दिस एम्प्यूला जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ सेमाइनल वेसिकल, मतलब सेमिनल वेसिकल जहाँ पर ओपन होती है उसके पहले का पोर्शन होता है, इट इज़ स्लाइटली स्वोलन पोर्शन एंड दैट नॉन एज द एम्प्यूला. हम लोगों ने फर्स्ट जो डायग्राम देखा था उसके अंदर ये चीज़ों को मेंशन किया हुआ था. ओके, I would like to show that part to you students, so it will be more clear for you. Okay, this portion we are talking about. Sorry.
Okay, let us move to the next one. Here we talk about the ejaculatory duct. इजैक्यूलेटरी डक्ट का मतलब होता है वास डेफरेंस जब आगे मूव होगी तो उसके साथ समाइनल वेसिकल है वो ओपन होंगी। तो ये जो समाइनल वेसिकल विच इज़ ओपन विद द वास डेफरेंस, सो इट फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो आगे जाके ओपन होती है इनटू प्रोस्टेट यूरेथ्रा। सी इन दिस डायग्राम, ये यूरेथ्रा को हम लोगों ने कम्प्लीटली दिखाया है। यूरिनरी ब्लैडर में से निकलने वाली पाइप को हम लोग ऐसे तो यूरेटर बोलने वाले हैं, पर यहाँ पे क्योंकि ये कॉमन ओपनिंग है फॉर द यूरिनरी and for the reproductive tract, so it is known as the urinogenital system. So here in this one diagram you are able to see यूरिनरी ब्लैडर में से जो यूरेटर पास हो रहा है उसके साथ इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन हो रही है। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट मतलब वास्ट डेफरेंस, अगर उसके साथ समाइनल वेसिकल का ओपनिंग हो जाए तो फिर हम लोग उसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलेंगे। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जब प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ यूरेटर जो जुड़ा हुआ है उसके साथ जब फ्यूज्ड होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट यूरेथ्रा, जो आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे इजैक्यूलेटरी डक्ट जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के लोकेशन के साथ ओपन हो रही है। सो नाउ इट इज़ नोन एज द प्रोस्टेट यूरेथ्रा। दिस प्रोस्टेट यूरेथ्रा जैसे आगे मूव हो रही है उसके साथ एक और ग्लैंड मिल रही है जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। तो ये काउपर्स ग्लैंड ओपन हो रही है और प्रोस्टेट यूरेथ्रा है उसके बीच एक शॉर्ट नैरो ट्यूब जैसा जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग नाम देंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पे मिल रही है वो नाम दिया हम लोगों ने प्रोस्टेट यूरेथ्रा। प्रोस्टेट यूरेथ्रा एंड काउपर्स ग्लैंड के बीच का जो शॉर्ट ट्यूबुलर पार्ट है उसको हम लोगों ने बोला मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा आगे जाके जब काउपर्स ग्लैंड से ओपन होके मीट होके जब वो पेनाइल पोर्शन में एंटर होती है तो इट इज़ नोन एज द पेनाइल यूरेथ्रा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वन यूरेथ्रा itself it is divided into three part. The very first जो प्रोस्टेट के साथ कांटेक्ट में है तो दैट इज़ द प्रोस्टेट यूरेथ्रा। प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड के बीच का जो शॉर्ट नैरो ट्यूब है दैट इज़ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, and this urethra open into the penis, so it is known as the penile urethra, right? So this is the whole diagrammatic representation of the urethra, and this part is open as the common urinogenital opening. Okay, now this urethra है it is lined by the pseudo stratified epithelium tissue like in the epididymis present. prostate urethra जो है it is a part of urethra बाहर से which is surrounded with the prostate gland, इसीलिए उसको prostate urethra बोला गया है। The second part is the membranous urethra क्योंकि it is the smallest part which is present between prostate urethra and penile urethra, right? Then the part of urethra which is open into penis that is known as the penile urethra. So penile urethra it is open outside through the body as a urinogenital orifice. Okay, now let us discuss about the seminiferous tubules, how exactly it is made up of. Okay, and in a cross section if we want to see about, so exactly this form is made up of what, that we need to discuss. So here it is made up of germinal epithelial tissue, क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू है ये कुछ ऐसा डायग्राम बताया गया है C12। ओके, पूरे डायग्राम को हम लोग अच्छे से देखेंगे। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इफ़ वी सीन, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हर एक ट्यूब का सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाएगा तो वो कुछ स्फेरिकल ही हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, राइट? चलो, विसरल पेरिटोनियम है, फिर द नेक्स्ट लेयर इज़ द टुनिका अल्बुजिनिया। टुनिका अल्बुजिनिया के कंपार्टमेंट से ही टेस्टिकुलर लोब्यूल फॉर्म हुए हैं।
then there is a blood vessels which supply blood to this testicular lobule. देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो आउटर साइड से कवर्ड है फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन. देन उसके पास जो क्यूबॉइडल शेप सेल है वो क्यूबॉइडल शेप सेल को हम लोग बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम. ओके और ये जर्मिनल एपिथेलियम कंटिन्यूसली मियोसिस प्रोसेस में जाके दे गिव राइज इनटू द स्पोमेटोगोनिया और वो स्पर्म को फॉर्म करेंगे, स्पर्मेटोजुआ को फॉर्म करेंगे, राइट. इन बिटवीन दिस क्यूबॉइडल सेल देर इज अ प्रेजेंस ऑफ elongated cell along with the prominent nucleus within it, and that cell are known as the Sertoli cell or nurse cell because their main function is to giving nourishment to the growing sperm or spermatozoa. In between this what we can say seminiferous tubule there is a presence of the leading cell. Here in this one it is showing in between the seminiferous tubule there is a presence of the this leading cell. So the function of the leading cell is to secrete testosterone which is responsible for the development of the secondary sexual characters of the male, and also it promote the process of spermatogenesis. ओके ये सर्टोली सेल की बात करें तो ये सर्टोली सेल्स हैं वो एक से ज़्यादा काम करते हैं इसीलिए और नरिशमेंट देते हैं इसलिए सर्टोली सेल का दूसरा नाम नर्स सेल भी है और उसका नाम सस्टेंटिकुलर सेल भी है. ओके तो ये सस्टेंटिकुलर सेल्स नर्स सेल सर्टोली सेल जो ग्रोइंग सेल्स को क्या करते हैं नरिशमेंट सप्लाई करते हैं. ओके सो दिस इज़ द होल डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो ईच कंपार्टमेंट में 2-3 जितनी होती है जिसका बेसमेंट मेम्ब्रेन जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है. वो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू क्यूबॉइडल सेल है वो मियोसिस प्रोसेस में जाके 2 टाइप के स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेगा, टाइप ए एंड टाइप बी. उसमें टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है वो डेवलप होके स्पर्म फॉर्म करेंगे और टाइप ए है इट सेल्फ इट इज सर्व एज द स्टेम सेल क्योंकि वो जब भी स्पर्मेटोगोनिया नए स्पर्मेटोगोनिया की ज़रूरत होती है तो टाइप ए सेल है वो देंगे, राइट. ये लीडिंग सेल है उसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन, एंड अदर देन दैट लीडिंग सेल इज़ ऑल्सो नॉन एज द इंटरस्टिशियल सेल. हम लोग सर्टोली सेल के बहुत सारे फंक्शन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे.